تاریخ کے صفحات میں 4 عظیم بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ ان میں سے 2 مسلمان اور 2 غیر مسلم تھے۔ مسلمان بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین شامل ہیں، جبکہ غیر مسلم بادشاہوں میں نمرود اور بخت نصر کے نام آتے ہیں۔ اس دستاویزی فلم کا موضوع ایک جابر اور سرکش بادشاہ نمرود ہے، جسے اسلامی روایات میں ایک ظالم و سرکش حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ نمرود کا نسب یوں بیان کیا جاتا ہے کہ نمرود بن کنعان بن کوش بن حام بن نوح علیہ السلام۔ یہ نسب ہمیں اس دور کی عکاسی کرتا ہے جب انسانوں کی زندگی کی لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ نمرود کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 3000 سال بعد کا ہے۔ وہ وقت جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان نوح آیا اور زمین پر ایک نئی نسل نے جنم لیا۔ تاریخ کے مطابق اس وقت کے لوگ سینکڑوں سال زندہ رہتے اور نسل در نسل اپنے علم اور ہنر کو منتقل کرتے تھے۔ اگرچہ قرآن مجید میں نمرود کا نام صراحتاً نہیں آیا، مگر علماء کا ماننا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں جس سرکش بادشاہ کا ذکر ہے وہ نمرود ہی تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سرکشی اور انکار کا مظاہرہ کیا۔ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو خود کو خدائی کا دعوے دار سمجھتا تھا اور لوگوں پر اپنی حکمرانی اور اختیار کو اللہ کے مقابلے میں پیش کرتا تھا۔ نمرود کا قصہ صرف اسلامی روایات تک محدود نہیں، بلکہ یہودی اور مسیحی بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ توریت میں نمرود کو ایک طاقتور بادشاہ اور شکار میں ماہر انسان کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس نے بابل اور ارد گرد کے علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ بائبل کی روایات میں بھی نمرود کو ایک جابر اور ظالم حکمران کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھتا تھا۔ اس دستاویزی فلم میں ہم نمرود کی زندگی، اس کی سرکشی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی مشہور تصادم کی کہانی کو اسلامی روایات کی روشنی میں بیان کریں گے۔ نمرود کی سرکشی اور اس کے انجام کا تذکرہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی طاقتور نہیں اور ہر ظالم کے لیے ایک دن ضرور مقرر ہے۔ پہلے ہم نمرود کے دور کی تہذیب، ثقافت، شہر اور معاشرت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد کا ہے، جب زمین پر نئی نسلوں نے جنم لیا اور بابل سمیت کئی شہر آباد ہوئے۔ بابل اس وقت کا ایک بڑا اور مرکزی شہر تھا جو دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے واقع تھا۔ بابل کی سرزمین زرخیز اور خوشحال تھی، جہاں لوگ کاشتکاری، تجارت اور فنون میں مہارت رکھتے تھے۔ اس دور کی تہذیب کو قدیم دنیا کی اولین تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لوگ ستاروں کا علم رکھتے تھے اور فلکیات اور عمارت سازی میں پیش رفت کر چکے تھے۔ بابل میں بڑے بڑے معبد، شاندار محلات اور مختلف علوم کے مراکز موجود تھے، جہاں لوگ سیکھنے اور تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ سماجی زندگی میں قانون اور انتظام کا خاص خیال رکھا جاتا تھا اور مختلف دیوتاؤں کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ اس وقت کے لوگ اپنی ثقافت، زبان اور لباس میں منفرد تھے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں پیش رفت کرتے ہوئے ایک شاندار تہذیب کو جنم دے رہے تھے۔ نمرود ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا جو بابل کی سرزمین پر ظلم و جبر سے حکومت کرتا تھا۔ اس نے لوگوں کو اپنی طاقت کے زیر اثر رکھا اور خود کو خدا کا دعوے دار بنا لیا۔ نمرود نے بابل کے لوگوں کو غلامی کے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا اور ہر طرف خوف و ہراس کا ماحول بنا دیا تھا۔
उसने लोगों पर टैक्स और भारी मेहनत की जिम्मेदारियां आयद की, जिनकी नाफरमानी करने पर उन्हें शदीद सजा दी जाती थी। नमरूद ने अपनी ताकत का खौफ दिलाने के लिए एक अजीम अलशान फौज बनाई और लोगों को उसकी वफादारी पर मजबूर किया। जो भी इसके हुक्म से इनकार करता और उसकी खुदाई को चैलेंज करता, इसे बेदर्दी से कत्ल किया जाता। उसने गरीब और कमज़ोर लोगों को बेहद जुल्म का निशाना बनाया और उनके पास कोई इख्तियार बाकी न छोड़ा। बाबुल के लोगों पर उसके जुल्म का आलम यह था कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे और हर मामले में नमरूद की रजा हासिल करना लाजमी समझते थे। नमरूद का जुल्म इस कदर था कि उसने लोगों की सोच और एतकादात पर भी कंट्रोल कर रखा था, ताकि वो उसकी खुदाई को कबूल करें और उसके खिलाफ आवाज़ न उठाएं। प्यारे नाजरीन, कहानी में मजीद आगे बढ़ने से पहले हम बाबुल के मशहूर मीनार का जिक्र करना चाहेंगे। इस्लामी अदब में इसके बारे में कोई मुस्तनद हवाला मौजूद नहीं है, ताहम ये इसराइली रवायात में ज़रूर जिक्र किया गया है। नमरूद, जो अपनी ताकत और गुरूर में अंधा हो चुका था, अपने आप को आसमानों तक बुलंद करने का ख्वाब देखने लगा। इसका ख्याल था कि अगर वो आसमानों तक पहुंच जाए तो अल्लाह से बराह रास्त मुकाबला कर सकेगा और यूं अपनी खुदाई को साबित कर सकेगा। इस मकसद के लिए नमरूद ने बाबुल में एक अजीम अलशान मीनार की तामीर का हुक्म दिया, जिसे तारीख में बाबुल का मीनार कहा जाता है। हजारों मजदूरों ने दिन रात इस मीनार की तामीर में हिस्सा लिया। नमरूद ने बाबुल के बेहतरीन ममारों को जमा किया और हुक्म दिया कि ऐसा बुलंद मीनार बनाएं जो आसमानों से बातें करे। दिन रात की मेहनत के बाद एक दिन वो लम्हा या पहुंचा जब नमरूद ने समझा कि वो अपनी मंजिल के करीब है। वो मीनार की बुलंद तरीन चोटी पर खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर गुरूर और ताकत की चमक थी। उसने अपना कमान और तीर निकाला और आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह को चैलेंज किया। नमरूद ने आसमान की तरफ तीर चलाया, गोया वो अल्लाह के साथ जंग में है। जब तीर वापस आया तो इस पर खून के निशानात थे। नमरूद ने इस बात को अपनी कामयाबी समझा और अपने साथियों को यह कहकर फरेब दिया कि इसने अल्लाह को शिकस्त दे दी है, मगर हकीकत यह थी कि यह खून अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था, जिसने नमरूद के दिल को और ज्यादा गुरूर में मुब्तला कर दिया। नमरूद की यह सरकशी और जिद दरअसल उसके जवाल का आगाज साबित हुई। अल्लाह ने इसके गुरूर को खाक में मिला दिया और वो मीनार बाबुल भी उसकी ताकत के जवाल की अलामत बन गया। एक दिन जब नमरूद गुस्ल कर रहा था और हुसैन औरतें इसके इर्द गिर्द थीं, अचानक एक सिया लिबास में मलबूस शख्स नमूदार हुआ। ये देखकर नमरूद हैरान हुआ कि वो शख्स किस तरह महल में आया। वो शख्स नमरूद से सवाल करता है, क्या तुम समझते हो कि तुम जमीन और इस पर मौजूद हर चीज के मालिक हो? नमरूद गुस्से में आकर इस शख्स को कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन जब वो अपने कमरे में वापस आता है तो वही शख्स दोबारा इसके सामने मौजूद होता है। ये शख्स दरअसल इब्लीस था, जिसने नमरूद को अपनी हकीकी सूरत में देखने की दावत दी। नमरूद ताकत के हुसूल के लिए इब्लीस के सामने सजदा करता है और उसके बदले अपनी रूह शैतान के हाथ बीच देता है। इब्लीस नमरूद को जादू सिखाता है और लोगों को मसहूर करने के हुनर देता है, जिससे नमरूद दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान बन जाता है। नमरूद ने एक दिन ख्वाब देखा कि एक सितारा आसमान पर नमूदार हुआ, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी को मांद कर देती है। नुजूमियों ने ख्वाब की ताबीर दी कि एक बच्चा पैदा होगा जो नमरूद का जवाल लाएगा। नमरूद ने पैदा होने वाले बच्चों के कत्ल का हुक्म दिया। इसी साल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उनकी वालिदा ने उन्हें नमरूद के जुल्म से छुपाया। प्यारे नाजरीन, अब हम इस दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सामना इस जालिम बादशाह से होता है। हर जालिम हुक्मरान की तरह नमरूद ने भी खुराक के ज़खायर पर कब्जा कर रखा था। वो लोगों में खुराक तकसीम करता
और उनसे अपनी खुदाई का इकरार करवाता था। एक दिन नमरूद अपनी रियाया में खुराक तकसीम करने में मसरूफ था, अपने गुरूर और ताकत का इजहार करते हुए, जहां गरीब लोग खुराक के हुसूल के लिए जमा थे। इन लोगों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। नमरूद ने गुरूर से हजरत इब्राहीम को अपनी खुदाई का इकरार करने को कहा, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके इक़्तिदार को मानने से इनकार कर दिया और इसे अल्लाह वाहिद की इबादत की दावत दी। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता और मौत देता है। नमरूद ने तकब्बुर से कहा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। नमरूद ने अपने आदमियों को 2 कैदी पेश करने का हुक्म दिया। उसने एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया और कहा, देखो मैं जिंदगी और मौत देता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तो जिसे तुमने कत्ल किया है इसे दोबारा जिंदा करके दिखाओ। नमरूद लाजवाब हो गया। फिर नमरूद ने तंजिया अंदाज में पूछा, तुम्हारा रब और क्या करता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम इसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद इस बात का कोई जवाब ना दे सका और खामोश हो गया। इसकी गुरूर भरी शिकस्त के बाद इसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुराक लेने से रोक दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई खुराक नहीं दी और जब वो अपने घर वालों के पास वापस लौटे तो रास्ते में एक मिट्टी के टीले पर जाकर 2 बोरियों में मिट्टी भर ली, ताकि घर पहुंचने पर उनका खानदान इसी में मसरूफ हो जाए। जब वो घर पहुंचे तो अपने सामान को रखा और कुछ देर आराम के लिए टेक लगाकर सो गए। उनकी अहलिया हजरत सारा इन दोनों बोरियों के पास गईं और उन्हें अच्छे खाने से भरा हुआ पाया। उन्होंने इसी खाने से पकाना शुरू कर दिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो तैयार शुदा खाना देखकर हैरान हुए और पूछा, ये खाना कहाँ से आया? हजरत सारा ने जवाब दिया, ये उसी खाने से है जो अब साथ लाए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि ये रिस्क अल्लाह की तरफ से है जो उन्हें अता किया गया है। उन्होंने अल्लाह की हम्दो सना की और फिर अल्लाह की अता करदा खुराक तनावुल फरमाई। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास गए और उन्हें अल्लाह वदे ला शरीक की इबादत की दावत दी और ये कि नमरूद और दीगर बुतों की इबादत छोड़ दें। मगर उनकी कौम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उन्हें शदीद तकलीफ दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को उनके बुतों की बेबसी दिखाने का फैसला किया। वो इस इबादतगाह में गए जहां उनके बुत रखे हुए थे और सब छोटे बुतों को तोड़ दिया, मगर सबसे बड़े बुत को सही सलामत छोड़ दिया। जब कौम वापस आई और अपने टूटे हुए बुतों को देखा तो हैरान रह गई। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा, ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े सुकून से जवाब दिया, बल्कि उनके बड़े ने ये सब किया है, उनसे ही पूछ लो अगर ये बोल सकते हैं। उनके अल्फाज ने उन्हें लाजवाब कर दिया और उन्हें अपनी अकीदत की हकीकत का सामना करने पर मजबूर कर दिया कि उनके बुत ना बोल सकते हैं, ना नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही फायदा दे सकते हैं। मगर उनकी जिद और गुरूर ने उन्हें सच्चाई कबूल करने से रोक दिया। गुस्से में उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा के लिए नमरूद के सामने पेश कर दिया। नमरूद को बिलाखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने का मौका मिल गया। उसने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि एक बेहद बड़ी आग तैयार की जाए, ऐसी आग जो शहर की तारीख में पहले कभी ना देखी गई हो। नमरूद के हुक्म पर लोगों ने बेतहाशा लकड़ियां इकट्ठी की और एक बहुत बड़ी गड़ा खोदा जिसमें आग भड़काने की तैयारी की गई। गड़ा इतना वसी था कि दूर दूर तक उसकी हदें दिखाई नहीं देती थीं और लकड़ियों का अंबार आसमान को छूने लगा। फिर जब आग जलाई गई तो शोले आसमान से बातें करने लगे
और उसकी तपश इतनी शदीद थी कि लोग करीब भी ना जा सकते थे। शोलों का रंग सुर्ख से काले में बदलने लगा और उसके भड़कते शोले ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे वो हर चीज को खाक में मिला देंगे। नमरूद के सिपाहियों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में डालने के लिए एक मंजनीक तैयार की ताकि कोई उन शोलों के करीब न जाना पड़े। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस मंजनीक में बांधकर आग की लपेट में फेंक दिया गया। ये आग कई दिनों तक भड़कती रही और लोगों का ख्याल था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम व निशान भी इसमें बाकी नहीं बचेगा और उनकी राख इकट्ठी की जाएगी। लेकिन जब आग बुझ गई तो लोगों ने हैरत से देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज थे। उनके जिस्म पर आग का कोई असर न हुआ था सिवाय इसके कि उनकी रस्सियां जल चुकी थी। ये मंजर देखकर नमरूद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने सोचा कि इसके इख्तियार और ताकत को चैलेंज करने वाला कोई जिंदा कैसे रह सकता है और ये मौजिज़ा इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। अल्लाह ने अपने नबी को इसके दुश्मनों के सामने सुरखरू कर दिया और नमरूद की साजिशें खाक में मिल गईं। मजीद ये कि लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब और उनके पैगाम पर ईमान लाना शुरू कर दिया और अपनी साबिका अकीदतों की बातिल हकीकत को पहचान लिया। नमरूद के पास इसका कोई जवाब न था सिवाय इसके कि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश करे। उसने इब्लीस, जिस पर अल्लाह की लानत है, से मदद तलब की। इब्लीस ने इसे बताया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरअसल बड़े शैतानों में से एक शैतान है, इसीलिए आग ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। ताहम इब्लीस ने नमरूद को यह हकीकत नहीं बताई कि हजरत इब्राहीम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों में से एक नबी है। नमरूद ने गुरूर और तकब्बुर के आलम में पूछा कि हजरत इब्राहीम के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो उसके पास नहीं है। इब्लीस ने जवाब दिया, इसके पास सिर्फ चालाकी है। नमरूद ने बेबुनियाद गुरूर और तकब्बुर के तहत इब्लीस से बगावत की जो उसका वाहिद इत्तेहादी था। इस पर अल्लाह ताला ने आसमान से एक फरिश्ता भेजा ताकि नमरूद को अल्लाह की वहदानियत की दावत दे और अल्लाह की हुक्मरानी को तस्लीम करने का पैगाम पहुंचाए। नमरूद ने तकब्बुर और सरकशी के साथ फरिश्ते की दावत को बेबुनियाद दावों और गुरूर से रद्द कर दिया। उसने अल्लाह के पैगाम को मानने से इनकार कर दिया और अल्लाह के भेजे गए पैगाम्बर के खिलाफ बगावत का रास्ता इख्तियार किया। हिदायत के मौके मिलने के बावजूद उसका दिल तकब्बुर की वजह से अंधा हो चुका था और उसने सच्चाई को झुटलाना ही बेहतर समझा। फिर अल्लाह ने एक और फरिश्ता भेजा, मगर नमरूद ने इस हिदायत को भी ठुकरा दिया और मजीद बगावत पर उतर आया। अल्लाह ताला ने नमरूद को तीसरी बार एक फरिश्ता भेजा, मगर उसने एक बार फिर इनकार कर दिया। नमरूद ने फरिश्ते को चैलेंज करते हुए कहा, अपने लोगों को जमा करो और मैं 3 दिन के अंदर अपने लोगों को जमा करता हूं। नमरूद ने 3 दिन के अंदर अपने हामियों को जमा कर लिया। जब ये मुलाकात हुई तो अल्लाह ने उन पर मच्छर की फौजें नाजिल कर दी। ये मच्छर उनके गोश्त को खाने और खून को पीने लगे, हत्ता कि उनके जिस्मों के सिर्फ बिखरे हुए हड्डियां बाकी रह गईं। इन फौजों में से कोई भी जिंदा ना बचा सिवाय नमरूद के। अल्लाह ने नमरूद को ऐसी सजा दी कि एक मच्छर उसकी नाक में दाखिल होकर उसके दिमाग में जा बैठा। नमरूद को इस दर्द से आर्जी नजात सिर्फ इस वक्त मिलती जब वो अपने सर पर लोहे के हथौड़े और जूते मारवाता। उसने अपने गुलामों से इल्तिजा की कि इसके सर पर ज़र्ब लगाते रहें ताकि उसे कुछ देर के लिए आराम मिल सके। कहा जाता है कि नमरूद ने इस मच्छर की अजियत में तकरीबन 400 साल गुजारे। यही वो अरसा था जिसमें उसने लोगों पर जुल्म, तकब्बुर और जबर से हुक्मरानी की थी। अल्लाह ताला ने इसे एक छोटे से मच्छर के जरिए ऐसी सजा दी जो बिलाखिर उसकी तबाही का सबब बनी। कुछ रिवायतों के मुताबिक नमरूद अपने सर पर होने वाली मुसलसल ज़रबों की वजह से पागल होकर मरा। ये हर ऐसे जालिम और जाबिर हुक्मरान का अंजाम है जो बगैर इंसाफ के इक़्तिदार हासिल करता है। बेशक अल्लाह ही वाहिद और हकीकी माबूद है। वही अकेला बादशाह और ज़बरदस्त कुदरत वाला है जो अपनी अज़मत का हकदार है। वही माबूद और हाकिम है, तमाम चीज़ों का खालिक है। अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है, बाबरकत और बुलंद व बाला है। अल्लाह बरकतों और अज़मत वाला
सबसे बुलंद और सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला है। अल्लाह की रहमतें, सलामती और बरकतें हों हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खानदान और सहाबा पर। अल्लाह अब सबको अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखे। आप पर सलामती, रहमत और बरकतें नाजिल हों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तला मिल सके। लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।